गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कैसा लग रहा है हैदराबाद? फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है। सर एक छोटा सा जस्ट इंट्रोडक्शन की करेंटली वर्ड। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम महेश भागवत है। वैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। शुरू में मणिपुर काडर में था। 95 में मेरा सिलेक्शन हुआ। 99 के बाद मेरा आंध्र प्रदेश में फिर ट्रांसफ़र हुआ मैरिज के बाद, और तब से 2014 तक मैंने यहाँ पे आंध्र प्रदेश में काम किया। और 14 के बाद जब स्वतंत्र तेलंगाना बन गया तो तेलंगाना राष्ट्र में हूँ। और अभी आजकल मैं CID चीफ एडिशनल DG रैंक पे यहाँ पे DGP ऑफिस में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मेरा लास्ट पोस्टिंग जो था वो कमिश्नर ऑफ पुलिस राचकोंडा हैदराबाद का राइट साइड का जो एरिया है, वहाँ पे 6.5 साल मैं पुलिस कमिश्नर था। सर आपने मणिपुर की जिक्र किया है। मेरा पॉडकास्ट की जर्नी भी मणिपुर से शुरू हुआ था। सो मैंने फर्स्ट टाइम जो सीरीज बनाया था वो मणिपुर से था। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन मणिपुर? मैं जब मणिपुर में था एक्चुअली 1997 से 99 तक, वो पीरियड जो था इंसर्जेंसी का पिक पीरियड था। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट माहौल था उस समय पे। हम लोग जब मुझे 4 सिक्योरिटी गार्ड थे जिनके साथ में ऑटोमेटिक वेपन थे। मैं भी वेपन कैरी करता था, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट। और काफ़ी हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती थी उस समय। काफ़ी खून खराबा भी देखा उस पीरियड में मैंने। काफ़ी बार वहाँ पे एम्बुश वगैरह होता था सिक्योरिटी फोर्सेस का। देन इवन मेरे एक नज़दीकी जो दोस्त है 1994 बैच IAS ऑफिसर, उनका नाम था दशरथ प्रसाद। 25 जनवरी 99 के दिन उनके टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे वो मणिपुर के। वहाँ पे उनके चैम्बर में आके हत्या की गई। उनके ऊपर बुलेट फायर हुए थे। तो इस तरह का माहौल उस समय मणिपुर में था। यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, पिक ऑफ इंसर्जेंसी। सर इट्स बीन नाउ मोरेओवर यू जॉइन्ड इन 95। या So I was born in 95. Okay. Oh my God. So around somewhere 28 years in the service. Yes. How you were seeing the changes of policing with time? See, and I joined, actually got selected in 95, but joined in 96. Okay. Because I was again preparing for IAS as such. So last 27 years as such, we have seen lot of changes in the policing. And we call it like from cycle patrol to cyber patrol now. Okay. Yeah. So Can you that brief is, it? yes, cycle patrol. Okay. We used to patrol that time on bicycle or two आपने wheeler खुद किया mostly. Yeah, हम लोग जो है we used to move in area on foot also, foot patrolling also. Okay. But now we have to do the patrolling in the cyber domain now. So that's, and we call it that key cycle patrol to cyber patrol. This is a transformation actually. You can see now the policing as such today is mostly focused on the cyber crime, cyber criminals. That is now the top priority. The traditional crimes like theft cases or the house burglary, they are still there, but now the domain which is overpowered by the crime is the cyber crime basically. And then of late now the crime against children, crime against women, that is also nowadays taking more space compared to the traditional crime. Accident as such, yes, accidents, because now the number of vehicles are increasing, and road condition also many times is responsible, negligence of the drivers and all. So road accidents are nowadays, that is also one thing. You can see that increasing road accident. So the crime scenario, it's there is a change. Earlier only theft, simple theft were there, but now the chain snatching or snatching of mobile phones, that is also that kind of crime you can see. Then earlier the cards playing, gambling, that kind of, but now you can see online gaming. So that change has come now. Earlier the brothel based prostitution was there, traditional. Now you can see the online these escort services and all. That change has come even in that field. So the technology day by day is changing. So along with that, crime also is changing. I still remember Karl Marx. He used to quote that every economic change will be followed by social change.
So the economy now is changing day by day, and then along with that our society also is changing, and the needs of people also. The crime scenario as such, demand and supply, what we say, is based on that only mostly. So basically सर आपने evolution of crimes की बात कर रहे हो, तो इसमें I want to get into like you are one of the senior most officer in the ADG rank, but ground level पे आपके your SHOs, SPs and they naturally काम करते हैं. So जब आपको उनको समझाना होता है कि you know the evolution of crimes has been happened, so उसमें ये होता है कि पहले पुलिस में ये होता था हम तो देख के बता देंगे कौन क्रिमिनल है, but आज साइबर के ज़माने में आपको पता भी नहीं होता आदमी कहाँ से बैठ के क्या कर रहा है. How you mold those people in? See what happens now our the ground level functionaries also, they are more dependent on technology nowadays. Earlier they used to be dependent on the human intelligence. Okay. But nowadays, because what you said now, you are not knowing who is the criminal and where he is sitting and all. So to connect the criminal to the crime, what is now the most required is the technology. So technology like fingerprinting, first of all, DNA, then the technology like CCTV footage, that is helping us a lot. Then technology like use of the mobile phones and location, then the call details and all, the analysis of that. So all these things are helping us to connect the criminal to the crime. And now our lower level function is also, they are getting into that mold now. Any crime like anywhere here in the say city, commissariat or even rural areas also now, they will look for anywhere cameras are there. They will get the footage and then they will analyze the footage. They will zero on the suspected person, suspected vehicle, and they will detect it. Otherwise, the fingerprints now, we have the papillon system of Russia, where immediately, if that person is old offender, his database will be there with us. So that there will be matching of fingerprints. Immediately, we are informing the field officer that so and so person has done it, and look for that person. So that kind of technology has been developed now. Earlier, we used to depend on the human intelligence a lot. We used to maintain many gang files, go through old record, and then check their complicity, call them, verify them. Now that kind of things, that was time consuming also, and resources were also not available that time. Like now, all this thing now is not required. Here, the technology is helping you. Technology has really become a game changer now. मैं आपको कल भी मिला था, आज सेकंड डे मिला हूँ. एक मेरा पर्सनल फीलिंग हुआ आपसे मिलके. You don't give that vibe of typical policeman. इसका रीजन क्या है? No, see, I am basically before joining the police, I was into social activities and all. I work with NGO organizations also, and I was more inclined to become IS officer actually. Okay. And then accidentally I joined into police. So I was into developmental kind of administration and all. And after joining police also, now I am not only doing the firefighting job. I always look for the solution, alternate, permanently what we can do, so that this kind of crime should not occur and what. So we give a solution. Many cases, many criminals also, we try to reform them. They should not again indulge into the crime and or completely control their activities, so that by getting them convicted or getting them say preventive detention, and so that sometimes at least they will be inside and crime will not be continued by them. And whenever the any person want to reform, want opportunity, we are helping them to come out of that. That we have done in Naxalite affected area also, to reform the Naxalites. Then the criminals also, sometimes we are helping them. If they are really, they want to start new path, new life, we are helping them. इस टॉपिक में मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि यू सेड कि यू हेल्प देम व्हेन समबडी, लाइक शुरुआत में जब आप सर्विस में आए थे, there might many time you saw there will be somebody who just got trapped, maybe some false things or many other things, he just got trapped or she just got trapped. एंड हमारे जो लेमैन की प्रॉब्लम है, हमें कई बार हमें खुद को कानून नहीं पता और हमारे राइट्स को नहीं पता होता है और हम फंस जाते हैं. फिर हम सिस्टम को दोषारोप करते हैं कि ये सिस्टम की वजह से मैं फंसा हूँ. वो सिचुएशन आपने देखे होंगे.
अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हो एंड हाउ यू टैकल दोस पार्ट। सी हमारा तजुर्बा ये है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स फर्स्ट टाइम जो क्राइम करते हैं जनरली उनको वो इस फेज से जाते हैं, उनको मालूम नहीं रहता कि कैसा हुआ उनके हाथ से, या उन लोगों के साथ में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम हमारे ग्राउंड लेवल ऑफिसर को भी यही बात बोलते हैं कि आप उनको काउंसलिंग करो कि उनसे दोबारा ऐसा काम ना हो जाए। हाँ, तो दैट हमारी कोशिश वही रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे हमारे पास में नक्सलिज्म मूवमेंट बहुत स्ट्रांग थी एंड कई बार जो है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी जो थी काफ़ी अच्छी पॉलिसी रिहैबिलिटेशन की वगैरह, वो देख के काफ़ी लोग सरेंडर हुए। तो सरेंडर होने के बाद हम उनको रिहैबिलिटेशन का पैकेज वगैरह देते थे। मुझे अभी भी याद है 2003 की बात है, एक लड़का सरेंडर हुआ था एंड ही वॉज देयर इन द मूवमेंट फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स एंड 15 साल के बाद सरेंडर होके देन ही स्टार्टेड सेइंग कि आई जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, दैट वाज इन 1988 एंड 2003 he surrendered and he expressed that no, I want to continue my engineering again. So then I contacted the vice chancellor of university, Kirat, so and so boy is there, he discontinued education because of he attracted towards this ideology and all. Now he surrendered before the government and as a part of rehabilitation he is asking to continue his education. So one question came from the vice chancellor, who will take his responsibility? We said he has surrendered before us on believing on the government, so we have to take responsibility. Then they asked me in writing, so I have given it in writing on my letterhead. Yes, we are taking guarantee of so and so person because he surrendered before us and he will continue his education. We'll also help him, we will supervise him that he should not do anything wrong karke. And it was 2003. Then again in 2017 when I was commissioner of police here in Hyderabad, the eastern area called Rajkonda. So one day I went to an engineering college, the tree plantation activities were going on, and I have seen that one person is running from a distance and coming to me, and then he called me, sir, have you identified me or you recognize me? I said, no, I am the same person who surrendered before you, because he surrendered before me that time. So then I remembered that, all those things. Then he said ki after that he completed his BTech, he completed his MTech also, and he is working as a assistant professor in that college now. So I was very happy that if you give the opportunity to the person, definitely they will make it. But for that, what is required, you should have a faith or trust in that person. Yes, he can do something. If given the opportunity, people will change. That is my personal experience. बेसिकली आप वो उस एज की बात कर रहे हो सर जब एडोलेसेंस होती है। बिल्कुल। तो एडोलेसेंस में एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारी जनरेशन्स है, मिलीनियल्स है ना, टू मच ऑफ अपॉर्चुनिटी, साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है। तो जब अब मैं इस जनरेशन के बच्चे के साथ बात करता हूँ, जब आजकल पॉडकास्ट के दौरान बहुत सारे एस्पिरेंट से बात करता हूँ, तो कुछ सिचुएशन सर मैं उनसे सुनता हूँ कि दे गोइंग थ्रू ब्रेकअप, बट वो किसी को बता नहीं सकते, ना घर पे बता सकते हो ना किसी को बता सकते हो, एंड उसकी वजह से प्रिपरेशन खराब हो रहा है। कोई भी चीज़ हो सकता है, यूपीएससी एंड स्टफ्स लाइक, मुझे नहीं पता आप लोगों के टाइम भी ऐसा होता था कि नहीं होता था, बट हाउ यू टेक ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज आप भी बहुत सारे यूथ को हेल्प करते हो फॉर द प्रिपरेशन। काफ़ी सारे एक्चुअली आजकल तो अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही है। आप लोगों के टाइम भी ऐसा होता नहीं होता था, प्रिपरेशन में भी रहता था, देन एडोलेसेंट एज के कारण तो डिस्ट्रैक्शन तो रहता ही है, बट इतना नहीं होता होगा ना, जो अभी थोड़ा मोबाइल सोशल मीडिया इसके कारण तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। बट आजकल इवन रिसोर्सेज भी ज़्यादा अवेलेबल है। हमारे समय रिसोर्सेज तो लैकिंग थे, एक एक बुक हमको जेरोक्स करके पढ़ना पड़ता था। उस समय कुछ वेबसाइट पे गूगल पे कुछ नहीं था, एवरीथिंग वी हैव टू रीड थ्रू द बुक्स ओनली। आजकल तो रेडीमेड मिल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, शॉर्टकट बहुत सारे आए हैं आजकल, तो दैट चेंज इज देयर। But at the same time, as you said, because of social media, because of the mobiles and all, lot of distraction is there in the society, and ये तो होता ही रहता है। But इसमें one thing that we have to do is कि we should look for some shock absorbers. Maybe in the family someone और the friend अपना, कि जिसके ऊपर आपका भरोसा हो, उससे आप शेयर करते चलो, वेंटिलेट करते चलो। If you ventilate it, definitely it will not reach to your heart.
That is, ventilation is very much required for such people. आपको जरूरत Yeah. है वेंटिलेशन की? तो उस पीरियड में हर एक आदमी जाता है. तो आप जब कैसे आपका किया ventilation? आप वही पता है, फेल्योर आ गया मान लो, तो अगेन जस्ट सिट क्वाइटली, थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग, देन अगेन start with say learn lesson from that, and then sharpen your tools and prepare with say renewed energy and more focused approach, and then walk ahead. You have to accept it. That see, we always say that no, when you listen to word no, no means next opportunity. Something is waiting for you. It's not the end. Even for the UPSC, we are telling the people, even your all attempts are over, nothing to worry. Something is waiting for you. You will make something in the life. And we have seen many of our friends who couldn't make into civil services and all. The field they have selected, they are topping in that field. Some of them, like they have even joined the journalism. Oh. Yeah. They have reached up to editorial. Yeah. Great. So this one person is one of our friend is audit. He's having auditing firm. Okay. There are many, some 27 lawyers I think with him. So whatever field they have selected, they have excelled in that field. That is our experience. So all this preparation and all that has not gone waste. It has definitely helped you in personality development as such, and then widening your horizons. Otherwise you will be like a frog in the well. But this preparation for civil services definitely helps you. You will know many things, what is happening in the world, what is happening in the country, and that will help you to develop your personality also. So if we talk about policing, आपकी एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा है, बट जितना थोड़ा बहुत मुझे समझ आया कि इट्स लाइक अ ग्रे वर्ल्ड, बहुत कुछ चलता है एंड आप नहीं बता सकते हो आम जनता को क्या महसूस होता है जब आप एक भीड़ के बीच में अकेला खड़े हो, अपने आप को कैसे अलग महसूस करते हो? कई बार होता है कि हर चीज़ हम नहीं बता सकते कि, क्योंकि और दूसरी बात ये रहती है कि जब तक कोई केस है मान लो, वो केस डिटेक्ट ना हो जाए तब तक तो हम कुछ शेयर ही नहीं कर सकते. काफ़ी फायर फाइटिंग हो, काफ़ी सारे एंजाइटी रहती है, वो केस जब तक डिटेक्ट ना हो जाए तब तक. बट एक बार डिटेक्ट होने के बाद देन हम तो ओपनली मीडिया के सामने आ जाते हैं, हम देन वी शेयर हमने कैसे डिटेक्ट किया है उसको, या लोगों को हम अलर्ट भी करते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ क्राइम्स. तो क्या सावधानी आपको बरतनी है, उसके बारे में भी हम जानकारी देते जरूर, अलर्ट करते कि हमारा एक ही रहता है कि लोग दोबारा इस मोडस ऑपरेंडी से धोखा ना खाए. नहीं, ये तो सर आपके प्रोफेशनल हो. मैं पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ. पर्सनल लेवल पे कैसे महसूस करते हो आप, बीइंग इतने सारे 20 years या 27 years in the service, when you sit in a group of people from various field and you see yourself in a person, क्या महसूस होता है? पर्सनली तो सेटिस्फैक्शन ही रहता है एक्चुअली. एट द एंड ऑफ डे मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट कि बिकॉज ऑफ द से मैच्योरिटी एंड ऑल, वो एब्सॉर्ब करने की भी एक आदत हो गई अभी कि यस, and at the end of the day you have to accept and you have to pat yourself because nobody else will. Yeah, that's why you have to pat yourself कि ADG साहब को भी पैट करना पड़ता है कि today was a great day and then sleep quietly, wait for next day, next opportunity. वो तो करना ही पड़ता है. You can't keep it in your heart and keep on adding on that. No. One good thing for me personally is whenever I go to bed, in just 5 minutes I'll be in deep sleep. That's a very good thing. That's what I'm saying. It's a God's gift that whole day I will be energetic, but whenever I go to bed, it's over. So I forget everything. Next day morning again start with new energy, new zeal, and focus on your work. अभी सर आईटी और कॉर्पोरेट के ज़माने में लाइक देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन गेम गोइंग ऑन हर सेक्टर में बेसिकली.
एंड कहीं कभार जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनको बोलते हैं यार सरकारी नौकरी वाले तो चिल होते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं होता. व्हाट इज द रियलिटी? यहाँ पे भी होता है डेडलाइन प्रेशर और? नहीं नहीं, यहाँ पे भी रहता है. सी इन पुलिसिंग में तो ज़्यादा ही प्रेशर रहता है, आपको तो डिलीवर करना पड़ता है इमीडिएटली आपको, एंड मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. योर हैंड्स आर ऑलवेज फुल, यू आर डूइंग समथिंग एंड अभी आपको इमीडिएटली यू आर गेटिंग सम फोन कॉल and the case now getting reported which is say more violent, which required more resources, more attention than what you are doing now. And even and sometimes issue may be small, but it's in the public domain and people are on the road, so deliver तो करना ही पड़ता है. Hierarchical pressures होता है? Hierarchical, see we always say in the policing there are 5 P's actually. So first comes the pressure of society, जनरल पीपल इन जनरल, द कंप्लेंट जो हमें देते हैं या उनका प्रेशर रहता है. सेकंड सीनियर हमारे, थर्ड इज प्रेस, मीडिया, बहुत विजुअल मीडिया या प्रिंट मीडिया उनका रहता है. नेक्स्ट इज द देर आर से प्रेशर ग्रुप्स लाइक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर्स, कि जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो देयर. हमेशा पुलिस को उनसे रहता है. एंड द फिफ्थ इज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल ऑफिस बेयर्स, बिकॉज वी आर इन वर्किंग इन डेमोक्रेसी. सो वी whatever is the government policy that we have to implement. So this 5P, the pressure of this 5Ps is always there, and we have to face that we have to accept. इनिशियली सर जब एकदम शुरुआत में अगर बात करूँ, जब आप व्हाट वाज योर फर्स्ट पोस्टिंग अगर आपको याद हो तो? मुझे फर्स्ट पोस्टिंग मेरा, मैं प्रोबेशन किया था इम्फाल टाउन में ही. ओके. हाँ, एंड देन बाद में फिर एएसपी थोबाल, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल एसपी थोबाल था. थोबाल आई थिंक चांदेल जाने वाले रास्ते? हाँ बिल्कुल, पहला ही टाउन है. हाँ थोबाल वही रूट पे. मोरे जाने के लिए है एग्जैक्टली. और सर यहाँ पे आने के लिए आपको कौन सा? यहाँ मैं वाज ASP grade 1, that is additional SP in Eluru, West Godavari. I think that time it was not undivided. Undivided Andhra Pradesh. Yeah. So सर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जब पहले यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट चार्ज मिली एंड शुरुआत के दिनों में जब आपको किसी का फ़ोन आता था ये करना है वो करना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप डर रहे हो, बट तब तक एक प्रॉपर पुलिसमैन बनने में समय लगता है, वो पकने में ना बनने लगता है. हाउ वाज दैट फीलिंग? हाउ वाज द नाइट्स दैट टाइम? See, that time, first of all, one good thing about us is we are Indian Police Service officers. So people also know, whoever calling us, so they expect many things from us. They expect impartisan attitude. They expect that raging to the occasion and delivering, and so they come with that expectation. Even the political also, the office bearers also, they will call you. They know that what is a Lakshman Rekha karke. So who is the sitting on this there, and what kind of officer. So it all depends on what kind of work you are doing, and through the work the message goes. We always say in our services 5 years are very very important to make your own image, and then next time wherever you go, that image already traveled there, which is faster than you. So people know that what are your likes, dislikes, and what kind of officer you are. So everyone knows. So your officers knows. Even the political office bearer will also know. So they will accordingly, they will take work from you. That is my personal experience I am sharing with you. So you said about politicians. I want to get into it. Like with time I have realized, even earlier being a layman, I also used to think कि हमारे भी एक concept है ना, politicians तो पढ़े लिखे नहीं होते, इनको क्या पता है. But while meeting so many officers and also knowing their stories, कि these people sometimes may not be highly educated in the terms of education, but they know what to say, whom to say, and when to say. बिल्कुल. See their experience, you can learn a lot from them, and they will help you also for the solution, because उनकी भी आगे की सोच होती है.
Definitely they will, sometimes there will be pressure on them also to convey a certain request and all. So they will convey it. But after that again they may call you. They may tell you that whatever is the legal or whatever is the constitutional kind of thing, you go ahead करके. That kind of things also we have experienced. रिटायरमेंट के बारे में सोचते हो? अभी तो 6 साल है देखें. कोई प्लान है आफ्टर 6 No, years? nothing yes, but right now तो this mentoring is going on. देखते उस समय तक 6 साल और how this mentoring goes. So depending on that I will take a call. You want like what's your main goal? ये mentoring करने का पीछे reason क्या है? मतलब why you started? No, see, all these things started because of I have gone through the similar situation while I was preparing, and many people helped me. Okay. And I was working and I was again preparing also. That was a little difficult period. So, and then in my house, my sisters, my parents also, they were into teaching profession. So I also love teaching or mentoring. इधर कैसे आना हुआ? So that first I have done engineering. Then engineering के बाद में then when I was working with the civil society organization and all, so I have seen many government officers working, and I have seen that the kind of infrastructure the government is having, and directly you can do something for society. So that's the reason I selected to join the government. करंट यूथ में क्या चेंजेस देखते हो? आप तो इतने सारे मेंटर करते हो, इनको भी अभी बहुत सारे लोग ऑफिसर्स भी बन गए, क्या प्रॉब्लम्स देखते हो अब इनके? करंट यूथ लेकिंग सी आजकल जो कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हो रहे सर्विसेज में वगैरह, वट दे आर मोर अवेयर अबाउट द थिंग्स देन अस, बिकॉज उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. हाँ, बट एक थिंग हम जो देखते हैं कि थोड़ा पेशेंस कम है. इमीडिएटली दे वांट रिजल्ट्स आल्सो overnight and then sometimes because of the social media and all, we see that they want immediately appreciation also. So because everything will have some time, we have to wait till that time comes. ये सर शायद आपको ये नहीं लगता कि आप ये बात इसीलिए कर रहे हो because you are a police officer and in this department your work is always behind the lens? Yeah, that is there. You are always many people are watching you what you are doing. How is that pressure? Can you explain? No, that pressure means तो हमको तो एकेडमी में ही बताया गया था कि बोले that nothing will be secret about you. आपके घर में आज क्या सब्जी बनी है वो जानने में भी लोगों को इंटरेस्ट रहता है करके. ऐसा हुआ है सच में? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, बट पब्लिक सर्विस है. We have to be careful in public life also and personal life also. That we have to follow पक्का. तो सर जैसे पर्सनल लाइफ को भी फिर कभी कभी हाइड आउट करना पड़ता है, घर पे भी कभी कभी है ना. सी स्पेशली द jurisdiction where you are working and all, there तो पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ तो एक ही होता है. You are out of your jurisdiction, then you can have some personal, whether people are not knowing you, then you can be like a normal person. And but in your areas where your state or your jurisdiction, knowingly or unknowingly you will meet someone, and they have certain they are watching you, that lens what you are talking, so they are watching you what you are doing and all. That stereotypes, they want that stereotype basically. We have to be careful then. But I don't feel like you are that typical stereotype person. No, I am not like that, but करना पड़ता है. करना. Sometimes it's like you have to follow. You have to certain image you are carrying, and you are completely opposite of that. That you can't do, na. So how is that person and Mahesh sir? आप कैसे हो थोड़ा बताओ. See, personally, तो I love music. I love what sort of music? Light in, like Hindi and all songs and all. I like theatre also. Oh. I like the classic films basically. I'm not going to every film and all, but those well acclaimed films, well acknowledged films basically. So that kind of films. Favorite hero कौन है आपके? सी बचपन से तो बच्चन साहब तो थे. मिले हो कभी बच्चन साहब से? नहीं, कभी मौका नहीं मिला. अच्छा, नहीं मिला कभी. ये तो इस हमारे जमाने के फिल्म्स वगैरह नहीं देखते हो आप? अभी तो
कम देखता हूँ वैसे। हाँ। लास्ट कौन सा मूवी देखा था? अभी मैंने देखा था वो सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, मनोज वाजपेयी का। अच्छा, जी 5 पे देखा हाँ, था। देखा हाँ, मैंने। देन एक अभी जो देखा वो प्राइम पे सत्य प्रेम की कथा। अच्छा, हाँ, हाँ, कियारा हाँ, आडवाणी का। हाँ, हाँ, वो भी अच्छा लगा इन्हें। हाँ, सब डिफरेंट। बट आप वैसे नहीं बोलते हो जैसे पुराने जमाने का लोग बोलते हैं कि हमारे टाइम पे तो कुछ और ही होता नहीं था। नहीं नहीं नहीं, वो अभी तो वो फेज नहीं आई है। यू आर स्टिल द यंग मैन। अभी रिटायर नहीं हुए हैं ना। अच्छा, मतलब बोल रहे हो रिटायर के बाद ऐसे हो जाओगे आप? तो दैट रिटायरमेंट के बाद फिर वो स्टोरी शुरू हो जाते हैं कि व्हेन आई वाज यंग एसपी, व्हेन आई वाज यंग, यू सी स्टिल आई हैव 6 years with me and still I'm working. What is the most memorable thing जो आज भी आप जब सोचते हो अकेला बैठ के और फील होता है कि कैसे कर लिया इसको? तो मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं। एक केस अभी भी यानी काफ़ी डिफिकल्ट था। एक सिचुएशन यहाँ पे मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस था राजकोंडा में, पिछले पोस्टिंग में। सो वहाँ पे एक देयर वर सीरीज ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ स्मॉल गर्ल्स एंड इनफैक्ट गर्ल मिसिंग भी था। वो केस जो है वो लोग आ गए, पेरेंट्स आ गए, दे वर वरीड अबाउट द डॉटर एंड देन हमने स्पेशल टीम्स वगैरह लगाए। सडनली इन्फॉर्मेशन आया कि एक कुएं में जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे कुछ तो है करके, तो उसमें वो बॉडी निकला। देन वो लोग काफ़ी इसमें पैनिक हो गए थे लोग, तो फिर उनको समझा के बॉडी फिर पोस्टमार्टम के लिए हम भेजा वगैरह। तो उसमें दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड रेप एंड मर्डर। देन उसी दरमियान और एक समाचार आया कि 3 महीना पहले उसी गांव से और एक लड़की लापता है, बट उसका कंप्लेंट भी नहीं आया पुलिस स्टेशन। तो उसी वेल में थोड़ा और हमने सर्च किया तो और एक वेल बॉडी मिला। एंड देन फिर लोग बोले और एक लड़की 4 साल पहले से गायब है करके, तो बाजू में और एक वेल है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये किया तो वहाँ से एक और बॉडी मिली। तो ऐसे 3 बॉडी मिले एंड तीनों जो बेसिकली रेप एंड मर्डर के केसेस थे। तो काफ़ी सिचुएशन जो है सीरियस बन गया था। लोग जो है इवन दे केम विथ लॉट ऑफ एंग्विश एंड पूरा ऐसा था माहौल कि लेडीज एंड जेंट्स पूरे एकदम पुलिस स्टेशन जलाने आए थे। हाँ, and I was sleeping. Then I went there. Then I was with my jacket, helmet, and all. And then I have taken the speaker and I spoken with them. I said, just give me. की बात है सर ये 2019 की होगी। तो give me just 24 hours. I will catch that fellow and I will ensure that he is getting the death penalty also. तो they said because I work earlier in that area. 15 साल बाद उनको मालूम था कि the kind of policing that, so they trusted me. So and then I have sent them back to their homes peacefully. वो cremation वगैरह हो गया and then we caught that fellow. He was from the same place and earlier also he was involved in some other crime. Then he confessed and then फिर हमने पूरा फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका ट्रायल चलाया एंड अराउंड मोर देन 100 विटनेसेस वर देयर। पूरे DNA वगैरह का भी एविडेंस था। हम लोग खुद जाके कोर्ट में ट्रायल अटेंड किए। अच्छा। खुद हमने विटनेसेस का मॉक ट्रायल लिया कि वहाँ से क्या सवाल पूछेंगे, कैसा जवाब देना वगैरह, पूरा एकदम एवरीथिंग। एंड देन फाइनली रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट आ गया 3 केसेस में, 2 केसेस में उसको डेथ पेनल्टी मिली और 1 केस में लाइफ मिला। सो दैट वाज द डे कि यस वी हैव डन समथिंग। एंड देन जब वो जो लड़की के पिताजी थे वो आके ही हक में कि एंड सो आई वाज कंसोलिंग हिम। आई फाउंड यस कि वो लड़की को तो बचा नहीं पाए बट एटलीस्ट कुछ तो जस्टिस तो कर पाए। देन गवर्नमेंट की तरफ से भी फाइनेंशियल एड वगैरह मिला उन लोगों को। देन उस गांव में भी CCTV कैमरा 15-20 लाख के लगाए गए। उस गांव को बस नहीं जाती थी। अच्छा। वो बस की सुविधा गांव को हो गई। उस गांव को जो है मेन स्ट्रीम कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज चाहिए था उनको। वो ब्रिज भी वहाँ 2 करोड़ रुपए दे के गवर्नमेंट ने बना लिया। काफ़ी सारी डेवलपमेंट वहाँ पे हो गई बाद में। सर इसमें कुछ लेमैन बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग, जैसे आपने बोला ना कि वहाँ पे वो लोग पुलिस थाने को जलाने आए थे, देन आपने वो किया। लोगों में ये भी चलता है, आम जनता ये भी सोचते, कभी कभार आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है तभी पुलिस काम करता है।
सच्चाई क्या है? ये होता ही है कभी, या लोगों को इन्हें इट्स नेचुरल ना, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाएगी ना बच्चों को। तो इट्स इज नेचुरल थिंग कि लोगों को मालूम है कि जब तक हम नहीं ये करेंगे कि हमको ज़रूरत है, तब तक डिलीवरी भी नहीं होगी। दे नो इट। बट सम पीपल माइंड से कि बट क्यों हर वक्त हमें जाना है आगे से, उधर से क्यों नहीं होगा? नहीं, सी वी हैव द ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। हाँ, इसमें प्रोएक्टिवली काम करने वाले हर एक आदमी आपको नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग रहते हैं कि जो लोगों को बिना पूछे लोगों को डिलीवरी दे रहे। वी कॉल इट 3 टाइप ऑफ पुलिसिंग एक्चुअली। एक तो रहता है रिएक्टिव पुलिसिंग, जो आप बता रहे थे अभी, हाँ, कि कुछ होने के बाद ही जाएंगे। हाँ, दूसरा रहता है एक्टिव पुलिसिंग कि कुछ तो करते रहते हमेशा एक्शन में ही रहते हैं। तीसरा प्रोएक्टिव पुलिसिंग और प्रिएम्प्टिव पुलिसिंग कि जो आगे की सोचते और उसके लिए जो है वो कदम उठाते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो जाए, उसके लिए क्या क्या करें, या फिर रूट जड़ से उसको प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग करना ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्सेज भी लगते हैं, उसमें पेशेंस की भी ज़रूरत होती है, बट इट हेल्प्स। आई थिंक बीइंग अ सिविलियन हमें भी वो तीनों में से आई नीड टू फाइंड द राइट पर्सन ताकि हमारे काम हो जाए। तो डू यू फेस दिस थिंग इन द सर्विस? कभी कभार आपको भी कई बार मैंने अभी, आई विल टेल यू अनदर एग्जांपल। अभी 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड दिस ऑपरेशन स्माइल कि जो छोटे बच्चे जहाँ काम करते हैं, बाल मजूरी या जहाँ मिसिंग होते हैं बच्चे काफ़ी, उनको ढूंढना, वो सब अभियान 1 महीना चलाते हैं पूरे ऑल स्टेट्स, ऑल यूनियन टेरिटरीज में। जनवरी महीना में, जुलाई महीना में 2 महीने चलता है। तो जनवरी 2017 में जब हमने ये ऑपरेशन स्माइल में अपना काम शुरू किया, तो ब्रिक्किन से यहाँ पे हैदराबाद के सराउंडिंग में, जहाँ पे हमारे कमिश्नरेट राजकोंडा में थे, तो वहाँ पे मैं था पहले। तो वहाँ पे ब्रिक्किन्स में हमारी टीम ने रेड किया, तो 2 दिन में तकरीबन 371 बच्चों को रेस्क्यू किया। 2 दिन में। और ये बच्चे उड़ीसा के थे, उसमें लड़कियाँ थी, लड़के भी थे, कुछ लोगों के माँ बाप भी उनके साथ में थे, और सुबह से लेकर शाम तक ये बच्चे ईंट बनाने का काम ही कर रहे थे। तो इनके साथ करना क्या, क्योंकि एक तो ये बॉन्डेड लेबर टाइप थे, क्योंकि उनको खाली 6 महीने के 12,000 रुपये मिल रहे थे। अच्छा। दूसरा इनका कुछ पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं। गवर्नमेंट का राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2010 का, 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं कि राइट टू लाइफ इज राइट टू एजुकेशन, उनको कंपलसरी स्कूल भेजना है। बट यहाँ हैदराबाद में तो तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम मिलेगा, उड़िया मीडियम कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उड़ीसा के बच्चे थे। तो फिर उड़ीसा से भी अधिकारी लोग आए, NGOs आ गए, हमने मीटिंग लिया, देन फिर डिसाइड हुआ कि हम वहाँ से NGO वो तैयार हो गए कि हम टीचर लेके आएंगे वहाँ से यहाँ पे, और हमारे कलेक्टर्स तैयार हो गए कि जो गवर्नमेंट स्कूल में हम इनको अकोमोडेशन देंगे, इनको मिड डे मील स्कीम जो है वो इनको एक्सटेंड करेंगे। एंड जो ब्रिक्किन के जो ओनर्स थे, जो बच्चों को एम्प्लॉय करते थे, उनको हमने केसेस में अंडर डाला था। तो वो भी बाहर आके बोले कि हम भी तैयार है, हमको मालूम नहीं था कि कानून इतना स्ट्रिक्ट है वगैरह करके, ट्रेडिशनली हम करते आ रहे। सो दे आल्सो बिकम पार्टनर। सो 2017 से हमने ये प्रोजेक्ट वर्कसाइट स्कूल नाम का शुरू किया कि उड़िया भाषा में हैदराबाद में बच्चों के लिए स्कूल। नवंबर दिसंबर में पेरेंट्स के साथ बच्चे आते, सीधा स्कूल चले जाते, और मई जून में पेरेंट्स वापस जाएंगे, उनके साथ वापस जाएंगे, उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट, कि उड़ीसा स्टेट में जाके एक क्लास हायर क्लास में जाएंगे बच्चे, यहाँ पे एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे, उनका डिसकंटिन्यू नहीं होगा। तो ये 2017 से अभी तक हमने तकरीबन 6,500 बच्चों को जो चाइल्ड लेबर का काम कर रहे थे या उसमें ट्रैप होते थे, उनको बाहर निकाल के उनको हमने एजुकेशन दिया, और दे आर कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन नाउ। सिमिलरली 2022 में इवन महाराष्ट्र से भी कुछ 55 बच्चे आए थे, उनको भी हमने मराठी मीडियम में एजुकेशन दिया है हम। तो वो भी वापस जाके रेगुलर स्कूल में वहाँ पे उनको भी मिल गया, एडमिशन मिल गया। तो एक जो अल्टरनेटिव बेसिकली कि आप खाली रेस्क्यू करोगे तो क्या फ़ायदा है, आप यहाँ काम कर रहे हैं तो कल जाके दूसरी जगह काम करेंगे। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द परमानेंट सोल्यूशन, कि आप कंप्लीटली
उसका जो है इलाज करें. सो वी कॉल इट एक्चुअली रूट कॉज ट्रीटमेंट. हाँ, सो ये रूट कॉज ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है. अगर रूट कॉज ट्रीटमेंट नहीं की तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल चलता ही रहेगा. वापस दोबारा फिर वो लोग यही काम करेंगे. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोएक्टिव पुलिसिंग एक्चुअली, कि आने वाले दिनों में ये रिपीट ना हो जाए, सो डैट आप दूसरे काम पे ध्यान दो. नहीं तो दोबारा वही काम करना पड़ेगा सबको. रिसेंटली शाहरुख खान की एक मूवी आया जवान, आपने देखे हो? नहीं, जवान देखना है. अच्छा, तो मैं फिर डिस्क्लोज नहीं करूंगा स्टोरी लाइन. उसमें बहुत सारे रियलिटी दिखाया है, बट एक वो कोशिश दिखाया कि वो डीआईजी है जेलर के, एंड जब उनको कोई भी चीज़ में गुस्सा आया वो पब्लिकली उतर के चीज़ कर रहे, जो आपको भी पता रियलिटी में होता नहीं है. तो इस रिलेटेड मैं सर इसलिए सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं एक एस्पिरेंट हुआ, एक बडिंग ऑफिसर हूँ, जस्ट इन अ प्रोफेशन राइट नाउ, जब आप कह रहे थे ना देयर आर मेनी किंग पिंग्स होते हैं, यू नो, जब आपको उनके ऊपर एक्शन लेना होता है, जो मर्जी ऑफिसर नहीं कर सकता है. आपको बहुत राइट लेफ्ट स्ट्रेट बैक देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ आदमी उनके आपके साथ भी होते हैं, आगे होते हैं, पीछे होते हैं, ऊपर भी जवाब देना होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं. वो सिचुएशंस कैसे हैंडल करना होता है? See, first of all, तो we have to expose them. Okay. That expose But through you expose keep it in through mind. exposing them that what they have done wrong through आजकल तो सबसे फास्ट तो सोशल मीडिया एंड मीडिया है. But sorry to interrupt, sir. हाँ, कि do you get ready with that कि इसका एक बहुत बड़ा repercussions हो सकता है? नहीं, that see the person, every person in the society carry some image. हाँ, और उसी में वो चलता रहता है. आपको उसी को ये करना है बेसिकली, तो आपका काम आधा हो जाता है. How do that study कि कैसे करना है इसको? It depends on the situation there. कैसा सिचुएशन है देख के then we plan. कई बार even the friends from media also help us. Okay. Without we tell, they will do many things for us. Because they also sometimes wait for opportunity. पुराना गुस्सा. Do you find? They also find that अच्छा हो गया, मिल गया. एक वो जिक्सो पजल लगता है, ये पूरा दुनिया की कहीं ना कहीं सब चलता रहता है. See, the society, no one wants that in the society there is always some law and order issue, some fighting is going on, and instability, insecurity. People want to live peacefully actually, and then everyone want to contribute for that. एक अकेले पुलिस ही अपना जो बैड लोग हैं उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते. सही बात. अभी कुछ देर जब हम ये शूट कर रहे हैं, शायद ये बहुत लेट आएंगे वीडियो, अभी गणपति आने वाला है. महाराष्ट्र मिस करते हो? या यहाँ पे तो काफ़ी रहता है, और यहाँ पे भी हम गणेश के समय में भी कुछ लोग मिल जाते हैं हमें कि जो सुनते नहीं बातें हमारी या गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे वो महाराष्ट्र का पैटर्न हम यूज़ करते हैं. बेसिकली वी कॉल इट एक दिन आपका बाकी दिन हमारे करते. ये क्या है बताओ थोड़ा. ये बेसिकली है कि जो गड़बड़ कर रहे हैं, नई बात सुन रहे हैं, पीके है मान लो, एंड उनके फ्रेंड्स के, उनके पेरेंट्स का भी नहीं सुन रहे, वी जस्ट रिकॉर्ड इट, एंड देन फेस्टिवल के बाद फिर उनको कानूनन उनके खिलाफ हम एक्शन लेते. सो कई बार क्या होता है ना, क्राउड में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उसका भी फ़ायदा उठाते कुछ लोग, गड़बड़ करते कोशिश करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू करते हैं, सुनते नहीं बातें किसी की, महिलाओं के साथ ये करेंगे, दूसरा गलत काम करेंगे कुछ. जस्ट दे थिंक दैट सो मेनी पीपल आर विद देम, बट वो एक दिन के लिए रहेगा ना. वैसे पता नहीं क्यों मेरे को बार बार आ रहा है, अब देख के ना आपको बहुत ज़्यादा लाइक यू वुड बी माई फादर्स एज, यू नो, लाइक दैट एज, एंड बहुत फ्रेंडली लग रहे हो आप. गुस्सा आता है आपको? यू गेट नहीं, देयर आर मेनी ऑकेजन्स, देन ब्लडी हो जाता है कंप्लीट कि द सिचुएशन कि ऐसा क्यों. बट अगेन वी हैव टू थिंक एंड जस्ट कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, एंड उससे बाहर आके देन व्हाट वी कैन डू नाउ, वो भी सोचना पड़ता. Like in CID, अभी तो आप जैसे बात कर रहे थे social media and other stuff. Do you watch this how young crowds are doing? Just like I'm a podcaster, I do podcasts. There are many content creators, you know. There are many ethical hackers. But sometimes लोग समझ नहीं पाते उनको. ये जो generations चल रहा है, ये जो एक अलग source of revenue generation है या profession है, इसको कैसे देख रहे हो आप? No, see,
lot of diversity is there nowadays. पहले तो गवर्नमेंट जॉब एक ही था, बट नाउ तो यू सी आईटी जॉब आने के बाद, देन स्टार्टअप्स आने के बाद, सो मेनी डाइवर्स फील्ड्स पीपल आर वर्किंग एंड ऑल. तो ट्रेडिशनल अभी नहीं रहा है. हाँ, एंड आई लाइक दिस दैट कि यंग पीपल एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज अभी काफ़ी सारे आ रहे हैं नए नए बच्चे में. ये शार्क टैंक एंड ऑल काफ़ी अच्छे हैं. मैंने जब भी हम देखते हैं कि देन इवन कुछ बच्चे आजकल सोशल कॉन्शियसनेस भी है. दे कीप डूइंग मेनी थिंग्स फॉर सोसाइटी. इवन कोविड पीरियड वी हैव सीन मेनी ऑफ देम हेल्प्ड अस. यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम था माइग्रेंट वर्कर का. दे यूज्ड टू गो बाय ऑन फिट टू झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल. कहाँ पे है वो और कितना चलेंगे ना वो लोग. तो वो लोग बोलते थे हमको कि हमारे लास्ट दिन में हमें हमारे लोगों के साथ ही मरना है करके. दे वर सो इमोशनल. फिर उनको कन्विंस करके फिर हम उनके लिए व्हीकल अरेंज करना या ट्रेन में उनके करके हमने भेजे काफ़ी सारे लोगों को. उसमें भी काफ़ी सिविल सोसाइटीज़ ने, बच्चों ने, आईटी के बच्चों ने, काफ़ी लोगों ने हेल्प किया हम लोगों को. तो वी हैव सीन नाउ इन सोसाइटी, यानी जब भी क्राइसिस सिचुएशन आ जाता है ना, तो काफ़ी सारे लोग आपको हेल्प करने आ जाते हैं. यंग लोग आजकल के खासकर हम देख रहे हैं कि दे हैव सम सोशल कॉन्शियसनेस आल्सो. दैट्स गुड थिंग. सर एक सिचुएशन आपको बताऊंगा. लाइक देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड जो हैकर है. सो ही जस्ट रैंडमली वन डे शो कि आई कैन हैक द सीसीटीवी ऑन द रोड्स. सो देन मुझे वो बाद में रियलाइज हुआ दिस इज ऑल्सो अ क्राइम. पुलिस कैन टेक एक्शन. But cut to you see abroad countries, police hire them sometimes. They give an opportunity. But यहाँ पे अगर पता लग जाएंगे उठा के ले जाएंगे. ये can we change these things? क्या लगता है? Then it depends on the case to case. Okay. You can't generalize. Okay. There will be situation where ethical hacker services are hired also. There will be situation. Yes. We also call experts sometimes from outside. Yeah, they help some. Okay. So. But I say we can't disclose their identity outside because obviously protocol issues. They are protocol issues and they are also professional, na? They don't know. How is the situation, sir? Like in CID, you might many times went through this, you know, that लड़की को ये लोग ले जाते हैं कहीं और. ये जो situations होते हैं in general, what the emotional disbalance you go through that particular time? See the CID जो आप मैंने सीरियल का CID इन ऑल में बहुत फर्क है. वो अभी नहीं है यहाँ पे. अभी तो CID में जनरली वी गेट मोस्टली द वाइट कॉलर क्राइम्स और देन जनरल ऑफेंसेस, स्कैम्स, समटाइम्स एग्जाम रिलेटेड एंड ऑल. For the audience, like white collar. वाइट कॉलर क्राइम मीन्स जो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, इम्पर्सोनेशन, इस तरह का जो क्राइम है कि जिसमें डॉक्यूमेंट्स या पर्सन को आप इमिटेट करोगे और बेसिकली मनी के लिए होगा. दैट इज़ अ वाइट कॉलर क्राइम. एंड मेनी टाइम्स दोज पीपल हु आर कमिटिंग सच क्राइम, they may not be the hardened criminals who like doing the theft, burglary, robbery kind of thing. So they are also professional sometimes. So we call them white collar offenders, who indulge into economic offenses mostly. Plus we have here general offenses also, like some exam scams, some diversion, some misappropriation sometimes, that kind of cases. Then specialized offenses also sometimes comes here, where the crime happen in many police stations or many districts. So एक ही agency करना, so that comes in the CID. Then this kind of cases comes here. So what you see in that CID serial and all, that is तो एक पुलिस स्टेशन का एक केस का पार्ट होगा. हाँ, ये जो एक एपिसोड में दिखाएंगे, तो हर एक पुलिस स्टेशन में उस तरह के केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं. उसके लिए CID नहीं है. अच्छा, ठीक है. Thank you so much, sir, for giving us the time. Just like, what was your feedback? Yeah, and how you liked it? So it was like see this overall this interaction I also enjoyed, and thank you for putting many questions which were even I have not thought of.